Greetings students. In the previous module we discussed about how metal react with the water. So in this module we will discuss about how metal react with the dilute acids. So when metal react with the dilute acids, they will release hydrogen gas, similar to that in case of water. कि मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो भी वो क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस, और जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो भी वो क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस. बट द डिफरेंस इज व्हेन मेटल रिएक्ट विद द वाटर दे प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड. कि फॉर एग्जांपल सोडियम रिएक्ट विद द वाटर टू प्रोड्यूस NaOH plus hydrogen. But in case of acids, metal react with the acid, generally the dilute acids, to give metal salt plus hydrogen. If it is not visible in the video, I am writing here. What is written here? Metal salt plus hydrogen. कि when metal react with the acid, they generally produce or release hydrogen gas, similar to that of water. The difference is metal react with the acid to produce salt, and in case of water they produce hydroxide, the basic substances. For example, in case of sodium, NaOH, the alkali. So this is the general reaction of metal with dilute acid. So one more thing before starting this topic, I have written dilute acid. All of you are aware about the strong acid, or don't take the concept strong acid. All of you are aware about the acids, which are strong acid, which are weak acid. But there is one more thing related to the acid. One is concentrated acid and the second one is dilute acid. कि concentrated acid वो होता है जिसके अंदर जो water का content होगा वो ना के बराबर होता है, तो कई acids में बिल्कुल भी नहीं होता है. And the dilute acid, कि एसिड के अंदर जनरली हम क्या मिला देते हैं, वाटर मिक्स कर देते हैं. एंड वी ऑलरेडी नो बट व्हाट इज द करेक्ट मैनर ऑफ डाइल्यूटिंग एन एसिड, A into W, एसिड into the water with the stirring. और क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती नहीं तो वो बाहर आ जाएगा. सो दैट इज द डिफरेंट टॉपिक. सो आई होप दिस डाइल्यूट एसिड इज क्लियर टू एवरीवन कि एसिड तो है लेकिन उसको हमने उसके अंदर क्या डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है. सो देयर आर टू वेज टू राइटिंग dilute acid. First is write the symbol of acid and in bracket write DIL, or you can write AQ, means aqueous, पानी मिलाया हुआ उसके अंदर हमने. So now we will start our topic, that is reaction of metal with the acid. So metal react with the dilute acid to produce metal salt plus hydrogen gas. So on the basis of their reactivity, सिमिलर इन केस ऑफ वाटर. की वाटर में भी हमने डिस्कस किया था कि कुछ ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव होती है, कुछ ऐसी होती है जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती हैं. तो सिमिलर इन केस ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विद द एसिड. तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन इज द दोज मेटल्स विच आर हाईली रिएक्टिव मेटल, कि वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं. सो दोज मेटल्स आर जनरली विच आर ऑन द top of the reactivity series. We will also discuss at the end of this module the reactivity series. So first reaction is sodium reacting with HCl. It will give salt, sodium chloride. dilute लिया हुआ है तो sodium chloride जो बनेगा वो पानी के अंदर ही dissolved form में रहेगा, and it will release hydrogen gas. Similar in case of potassium, it is also highly reactive metal, react with the HCl to produce potassium chloride. It is also soluble in water, so it will remain in this solution and release hydrogen gas. So you don't have to always write the reaction with the HCl. You can either take the example of sulfuric acid. The difference is sodium react with the HCl to produce chloride salt. The same sodium react with the sulfuric acid to produce sulfate salt. The salt है वो change हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है. That is the release of hydrogen gas. So these three reactions are clear to everyone. कि sodium react with the HCl to produce sodium chloride, कि HCl के साथ chloride salt बनाएंगे और sulfuric acid के साथ sulfate salt बनाएंगे. तो हर एक के अंदर आप sulfuric acid के साथ में भी reaction लिख सकते हो. So next is the moderately reactive metal. कि moderately reactive metals का मतलब क्या होता है कि रिएक्टिव तो होती हैं, एसिड के साथ रिएक्ट तो करती हैं, लेकिन नॉट एज विगरस एज इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम. इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है. तो सोडियम और पोटाशियम तो बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है, वॉलेंटली रिएक्ट करती हैं, बट नॉट इन केस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. करते हैं ये भी रिएक्टिव,
लेकिन इतने ज्यादा विग्रस रिएक्शन नहीं होती, मतलब इतनी ज्यादा वॉयलेंट रिएक्शन नहीं होती जितनी सोडियम और पोटेशियम के केस में होती है. सो नाउ वी विल अगेन राइट द सॉल्ट. कैल्शियम रिएक्ट विद द HCl टू प्रोड्यूस calcium chloride which is soluble in water, so aqueous, and release hydrogen gas. Next is magnesium plus HCl. Dilute I have already written. Magnesium chloride soluble in water plus hydrogen gas. Similarly, you can also write the example of potassium with sulfuric acid. The same formula will be there, K2SO4. Similar in case of calcium plus sulfuric acid. Calcium sulfate plus hydrogen gas. Similarly, you can write the action of magnesium with the sulfuric acid. So these are the generally comes under the category of moderately reactive. कि अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो सोडियम ज़्यादा वोलेंटली रिएक्ट करता है, फिर पोटाशियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम. कैल्शियम जो है ज़्यादा वोलेंटली रिएक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम. तो दिस इज द रिएक्टिविटी कि कोई ज्यादा रिएक्टिव है, कोई कम रिएक्टिव है, कोई उससे कम रिएक्टिव है, तो इस तरह से. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन दैट कम इन योर बोर्ड एग्जाम इज रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद द डाइल्यूट एसिड. तो क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी लाइक दिस कि एल्यूमिनियम है वो एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बट द रिएक्शन इज टू स्लो. द रीजन इज बिकॉज वी आर ऑलरेडी अवेयर कि एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द, कि एल्यूमिनियम के साथ क्या होता है, एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन जो एयर में होती है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की स्टिकी लेयर. लेट्स अज्यूम दिस इज द एल्यूमिनियम आर्टिकल. इट विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड इट विल फॉर्म ए स्टिकी लेयर. पूरी लेयर आ जाती है उसके ऊपर और वो रिएक्ट नहीं होने देता. बट हम किसके अंदर डाल रहे हैं, एसिड के अंदर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, इट इज फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड. और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर. हम क्या डाल रहे हैं उसके अंदर, एसिड. तो मेटल ऑक्साइड का नेचर जो इसके ऊपर आया है वो क्या है, बेसिक. तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ. तो एसिड हमारा कौन सा हो गया, HCl. तो एल्यूमिनियम प्लस HCl इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. तो एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड. Similarly, zinc react with the HCl to form zinc chloride plus hydrogen gas. Similarly, iron react with the HCl to produce iron chloride plus hydrogen. So, aluminium को पहले क्या करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम की जो बेसिक लेयर है वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, पहले वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगी. उसके बाद जो लेयर हट जाएगी उसकी ऑक्साइड की, देन इट विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद द एसिड. So this question generally comes in the board exam. So I am giving you few seconds so you can watch this reactions. So up to now we have already discussed one of the questions that comes in the board exam is that is related to the aluminium. Second we discussed कि कौन हाईली रिएक्टिव है, कौन मॉडरेटली रिएक्टिव है. तो एल्यूमिनियम जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है. सो एल्यूमिनियम स्लोली रिएक्ट करता है. क्यों रिएक्ट करता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, क्योंकि उसके ऊपर लेयर होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की. तो एल्यूमिनियम प्लस HCl AlCl3, जिंक प्लस HCl जिंक क्लोराइड, आयरन प्लस HCl आयरन क्लोराइड और फेरस क्लोराइड. So one more thing I am repeating again, you have to write the names under them. कि एल्यूमिनियम के नीचे छोड़ भी दो तो भी चल जाएगा, लेकिन जो मेन चीज है एल्यूमिनियम क्लोराइड, यू हैव टू राइट अंडर दिस जिंक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड. इफ यू डोंट राइट द नेम्स so there are chances the marks will be deducted. So be careful. So whenever you writing the reactions, always write their name. Aluminium chloride, zinc chloride, ferrous chloride. So we have already discussed highly reactive, moderately reactive metals. The third category is of metal that do not react with the dilute acids. ये ऐसी मेटल जो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करती हैं. तो वो कौन सी हो जाएंगी, कॉपर, सिल्वर, मर्करी, गोल्ड, platinum. So these are the few examples of metal that do not react with the water as well as do not react with the dilute acid. So that is why
गोल्ड और प्लेटिनम तो हैं वो किसी के साथ में भी रिएक्ट नहीं करती हैं, तो दैट इज व्हाई दीज टू मेटल्स आर जनरली कॉल्ड नोबल मेटल्स। कॉपर, सिल्वर, मरकरी मत लिखना क्योंकि वो किसी न किसी के साथ तो रिएक्ट कर ही लेते हैं। सो गोल्ड एंड प्लेटिनम दे आर हाईली अनरिएक्टिव मेटल, तो जनरली वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। सो दे आर जनरली कॉल्ड, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर कॉल्ड नोबल मेटल। नोबल वर्ड वहीं से आया, जैसे हम नोबल गैसेस की बात करते हैं, नोबल गैसेस आर हाईली अनरिएक्टिव गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, these are the noble gases. So similarly gold and platinum are called noble metal, कि वो किसी के साथ जनरली क्या नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। So these three categories of metal and their reaction with the particular acid. If you want to write, you can also write the reaction of zinc with the sulfuric acid, it will form zinc sulfate, iron with the sulfuric acid, ferrous sulfate, aluminium with the sulfuric acid, but write dilute. Aluminium react with the sulfuric acid to form aluminium sulfate. Now we have discussed कि gold and platinum are noble metal. gold और platinum क्या है, noble metal हैं, वो किसी के साथ नहीं react करते। it do not either react with the concentrated HCl और concentrated nitric acid। तो वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं कि गोल्ड और एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, दे जनरली रिएक्ट विद द reagent called aqua regia. So what is aqua regia? In exam question is there, what do you mean by aqua regia? So how you have to write? Aqua regia is the freshly prepared mixture of 3 parts of concentrated HCl and 1 part of concentrated nitric acid. So how to write? Aqua regia is the freshly prepared mixture of 3 parts of concentrated HCl and 1 part of नाइट्रिक एसिड। तो इतना ध्यान रखना है आपको, 3:1 के रेशियो में हमको क्या लेना है, HCl और नाइट्रिक एसिड। HCl ज्यादा है, नाइट्रिक एसिड कम है, तो 3 बाय पार्ट क्या होना चाहिए HCl और 1 बाय पार्ट क्या होना चाहिए आपका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जो ये मिक्सचर बनता है ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि इट कैन इवन रिएक्ट विद द नोबल मेटल गोल्ड। तो ये जनरली क्या करता है, मैक्सिमम सारी मेटल्स जो हैं, कॉपर है, चाहे सिल्वर है, चाहे मर्करी, इन सबको वो क्या कर लेता है, अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है, and it can even dissolve the noble metal gold and platinum. So what I have written, if someone asks you write the property, so in first you can write it is the freshly prepared, second is highly corrosive liquid, कि मैक्सिमम चीजों का अगर किसी के ऊपर गिर जाएगा तो उसको वो बिल्कुल पूरी तरह से क्या कर देगा, खराब कर देगा। फ्यूमिंग लिक्विड, धुआं से निकलता रहता है इसके अंदर। नेक्स्ट इज कैन इवन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वा रीजिया। तो आई होप दिस एक्वा रीजिया इज क्लियर टू एवरीवन, क्योंकि मिक्सचर है एसिड का कि जो गोल्ड और प्लेटिनम अगर हम अकेला कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं तो उसके साथ नहीं रिएक्ट करते, अकेला कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं उसके साथ रिएक्ट नहीं करते। इट विल रिएक्ट विद द एक्वा रीजिया विच इज द मिक्सचर ऑफ 3 बाय पार्ट HCl एंड 1 बाय पार्ट concentrated nitric acid. So I hope this aqua regia is clear to everyone. So up to now we have already discussed 2 or 3 questions. One is the reactivity question, second is the aluminum question, and the third one is the aqua regia. aqua regia होता क्या है और वो किसके साथ रिएक्ट करता है, ऐसे पूछ सकते हैं कि name the chemical to which gold will react. केमिकल का नाम बताओ जिसके साथ गोल्ड रिएक्ट करता है या प्लेटिनम रिएक्ट करता है। तो देन यू कैन राइट द एक्वा regia. Don't, if the question is of only 1 mark, then you can write aqua regia and then write this ratio, concentrated HCl and concentrated nitric acid. One more question. So there are number of acids: HCl, sulfuric acid, phosphoric acid, nitric acid. With the hydrochloric acid, with the sulfuric acid, with the phosphoric acid, in each and every case this general statement is true. Mean कि उनके साथ, तीनों के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। बट दिस डज नॉट हैपन इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड, कि अगर हम सोडियम मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होगी। व्हाई? बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि वो क्या करता है, दूसरों का ऑक्सीडेशन कराता है और खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन। So nitric acid is strong oxidizing agent. Let assume यहाँ पे हमारा HCl की जगह पे क्या है, नाइट्रिक एसिड है। तो
सोडियम है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस निकलती है रिएक्शन के अंदर, उसका ऑक्सीडेशन कौन कर देता है? नाइट्रिक एसिड। इफ आई कैन राइट 1 मिनट, if I can write the reaction, let assume सोडियम है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर। लेकिन होता क्या है, ये जो वाटर है वो कैसे बनता है कि मेटल है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस बनती तो है रिएक्शन के अंदर, लेकिन जैसे ही वो बनती है, ये नाइट्रिक एसिड इस हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन कर देता है और उसका क्या बन जाता है? वाटर। सो हाउ टू राइट द आंसर कि व्हाई सोडियम डू नॉट गिव हाइड्रोजन गैस विद द, व्हाई कैल्शियम डू नॉट गिव हाइड्रोजन गैस विद द नाइट्रिक एसिड? देन यू कैन राइट बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या कर देता है, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है रिएक्शन के अंदर, उसका क्या कर देता है? वो ऑक्सीडेशन कर देता है, और ऑक्सीडेशन करके हाइड्रोजन का क्या बना देता है? वाटर। सेकेंड, और हमने पहले डिस्कस किया, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कॉजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। तो खुद का रिडक्शन हो जाता है नाइट्रिक एसिड का, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? N2O, NO, NO2, these are the oxides of nitrogen. So दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्यों नहीं करते, क्यों हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके। सेकेंड क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक इज कि नेम द मेटल्स विच कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस विद द वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। सो दीज आर द टू मेटल which react with the very dilute nitric acid. First one is magnesium and the second one is manganese, Mn, manganese, not the magnesium. So first one is magnesium, second one is manganese. Both react with the very dilute nitric acid to produce their salt, magnesium nitrate, manganese nitrate, and they will release what? हाइड्रोजन। तो इस केस में हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है, और किसी मेटल में क्या होता है? हाइड्रोजन रिलीज नहीं होती है। सो अप टू नाउ वी हैव डिस्कस कि कौन सी मेटल हाईली रिएक्टिव है, कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम है, वो क्या कर रहा है? उसको थोड़ा टाइम लग रहा है रिएक्ट करने के लिए। रीजन क्या था? बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ द ऑक्साइड एंड दे आर फॉर्मिंग सोल्ट, हाइड्रोजन सोल्ट, हाइड्रोजन सोल्ट, हाइड्रोजन। एंड द लीस्ट रिएक्टिव जो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, तो उसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? कॉपर, सिल्वर, मर्करी, गोल्ड, प्लेटिनम। तो दे आर द नोबल मेटल। सिमिलरली तो गोल्ड और प्लेटिनम नोबल मेटल हैं, वो किसके साथ रिएक्ट करती हैं? एक्वा रीजिया के साथ। एक्वा रीजिया वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। वन क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड टॉपिक, the metal do not react with the nitric acid and give hydrogen gas. Similarly, two metals which give hydrogen gas with the nitric acid. Next is the reactivity series. So reactivity series we have already discussed. So what is the meaning of reactivity series? The arrangement of metal in a vertical column. कि जो metals हैं उनको हम vertical column में arrange कर देते हैं in the order of their decreasing रिएक्टिविटी, कि जो उसकी रिएक्टिविटी है मेटल की, ऊपर से नीचे जाएंगे तो वो कम होती जा रही है। सो इफ समवन आस्क यू डिफाइन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, सो हाउ यू कैन डिफाइन द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन ए वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. So the first metal that comes in the reactivity series is lithium, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold, platinum. So I have already explained the shortcut to learn this reactivity series. How you can learn? You can write in your fair notebook by listening to me. Lena, Katrina, ने, कार, मांगी, ओडी, जेन, फरारी, सेंट्रो, फिर भी, हाँ, क्यों, मिली, सिल्वर, ओडी, प्लेटिना. So I think most of you have already written this mnemonics to learn the reactivity series. This much is sufficient for all of you.
I am again repeating the mnemonics. You have how to write in the exam. First write the definition that I have already explained. Then write this reactivity series. Then write their symbol and then write their name in front of them. Lithium, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, lead, copper, mercury, silver, gold, platinum. And you have to mention and draw a arrow like this, and here you have to write decrease in reactivity. So in this reaction we have discussed कि भाई सोडियम हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, इट इज ए टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है उसकी जगह पे आ जाता है, पोटाशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है उसकी जगह पे आ रहा है, कैल्शियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड में. सो हाईली रिएक्टिव, moderately reactive, all of them are capable to displace hydrogen from the acid. Why? कहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में, यहाँ पे इसके ऊपर जो भी मेटल हैं वो सारे की सारी क्या कर सकती हैं, हाइड्रोजन को वाटर में से या फिर हाइड्रोजन को एसिड में से क्या कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है. बिकॉज सबसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं वो सारी की सारी हाइड्रोजन को वाटर में से और एसिड में से क्या कर सकती है, दे कैन डिस्प्लेस देम. सो हाइड्रोजन से ऊपर वाली जो है उसको डिस्प्लेस कर सकती है. सो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और जो नीचे वाली हैं वो हाइड्रोजन से नीचे हैं तो वो डिस्प्लेस नहीं कर सकती. सो आई होप दिस रिएक्टिविटी सीरीज इज clear to everyone. Now you can take a screenshot. One topic is left from this reaction of metal with the dilute acid. So first take the screenshot because I have to erase. Okay, so next is the reason. The reason is similar to that we have already discussed in the water case, कि how metal react with the dilute acid. How metals react with the dilute acid. So we have already discussed what are metals. Metals have tendency to lose electron और metals are electron donor. और मेटल की रिएक्शन किसके साथ हम करा रहे हैं, एसिड, जो क्या लूज करते हैं, एच आयन, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो विच गिव एच आयन. सो कोई भी मेटल है, जैसे फॉर एग्जांपल हम सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम कराते हैं विद दी HCl. HCl के अंदर क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस. सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, 281, so it will lose 1 इलेक्ट्रॉन और विल बी कन्वर्टेड इनटू Na प्लस. तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया है ये किसके पास चला जाता है, H आयन के पास, मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस H आयन, एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एटम, एंड हाइड्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक फॉर्म. तो ये रिएक्शन दो बार होगी, दो इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन एटम, और मिलके वो क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस. अब बच क्या गया है, Cl माइनस और Na प्लस. तो Na प्लस react with the Cl minus and will produce sodium chloride. So if someone asks you how this reaction takes place, then you can write here. The metal have tendency to lose electron. They will lose electron to the H ion of acid. And that H ion of acid will be converted into hydrogen gas. If someone asks you what is this reactivity series, क्योंकि मेटल तो कॉपर भी है, मर्करी भी है, सिल्वर भी है, गोल्ड भी है, लेकिन ये तो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है, तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे. हाउ टू राइट द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, बिकॉज कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, दे आर द मेटल, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, बट इट इज मच वीकर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ हाइड्रोजन. की टेंडेंसी तो है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, लेकिन वो इतनी पुअर होती है कि वो एसिड का जो H आयन है उसको इलेक्ट्रॉन लूज करते ही नहीं.
तो इसकी वजह से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है, रिलीज नहीं होती तो कोई भी उनके अंदर रिएक्शन नहीं होती है। सो आई होप यू कैन एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी सीरीज कि भाई जो नीचे वाले हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, वो ऊपर वाले हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले जो हैं मेटल्स हैं दे हैव मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और दे विल लूज इलेक्ट्रॉन टू द H आयन ऑफ एसिड। जो नीचे वाले हैं दे हैव पुअर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज व्हाई दे डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड और वाटर। सो I hope everything is clear related to the reaction of metal with the acid. So how you have to write? First you have to write the highly reactive, moderately reactive, then that I have already told you to take the screenshot, the aluminium part, then iron, then you have to write the unreactive, then aqua regia, then you can write the reaction with the nitric acid, the next topic, the first part and the second part. Then you can write the reactivity series. In reactivity series, first you have to write the definition, then you have to draw the reactivity series and mark an arrow decrease in reactivity. Then you can write this topic, how metal react with the dilute acid. So I have already explained how you have to write. Now you can take the screenshot of this portion and add in the previous topics, that is the reaction of metal with the acid. So I hope everything is clear related to the reaction of metals with the acid. If you still have any doubt, you can write in the comment section of Now you can take the screenshot and can write in the fair notebook. So thank you students.